Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूपा माता जी। तो आज हमारे बीच है श्रीमान अतुल निताय प्रभु जी। अतुल निताय प्रभु जी हमारे गोवा के बहुत ही वरिष्ठ भक्त है। ऑलमोस्ट 20 साल से प्रभु जी प्रभुपाद के आंदोलन से जुड़े हैं और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है। तो प्रभु जी यहाँ पे गोवा में तिविम बोल के जगह है, तो तिविम सेंटर में प्रचार करते हैं प्रभु जी माता जी। तो आज हमारा सौभाग्य है, हम आज प्रभु जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम का कथामृत आस्वादन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप आए यहाँ, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूँ आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ प्रभु, यस क्लियर। हरे कृष्ण। तो मुझे एक ही बार आपका संग मैंने लिया था 2 दिन पहले, तो जैसी प्रणति या श्रृंखला रहती इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा देखा था तो मैं ओम नमो भगवते से शुरू करूंगा, श्लोक लूंगा और बाद में हमारी ट्रांसलेशन तात्पर्य, उसके बाद थोड़ी सी कथा करेंगे। ये ठीक है ना? तो आज की हम ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 28 और 29वां श्लोक पढ़ रहे। मद भक्त प्रतिबुद्धार्थो मत प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसाम स्वसंस्थानं केवल्याख्यं मद आश्रयं प्राप्नोति हंजसा अधीरः स्वादृश चिन्ह संशयः यत गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे। मदभक्ता, my devotee, prati buddha arthe self-realized, mata prasadena, by my causeless mercy, bhuyasa unlimited, nishreyasham, the ultimate perfectional goal, swasamsthanam, his abode, kevalya akhyam, called kevalya, mata ashrayam, under my protection, prapnoti, attains, iha, in his life, Anjasa, truly, Dhire, steady, Swadrisha, by knowledge of the self, Chinna Samshaya, freed from doubt, Yata, to that abode, Gatva, having gone, Na, never, Nivarteta, comes back, Yogi, the mystic devotee, Linga, from the subtle and gross material bodies, Vinirgame, after departing. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: my devotee actually becomes self-realized by my unlimited causeless mercy, and thus, when freed from all doubt, he steadily progresses towards his destined abode, which is directly under the protection of my spiritual energy of unadulterated bliss. That is the ultimate perfectional goal of the living entity. After giving up the present material body, the mystic devotee goes to the transcendental abode and never comes back. Purport:
Actual self-realization means becoming a pure devotee of the Lord. The existence of a devotee implies the function of a devotion and the object of devotion. Self-realization ultimately means to understand the personality of Godhead and the living entity, to know the individual self and the reciprocal exchanges of loving service between the Supreme Personality of Godhead and the living entity is a real self-realization. This cannot be attained by the impersonalist or other transcendentalist. They cannot understand the science of devotional science. Devotional, devotional service is revealed to the pure devotee by the unlimited causeless mercy of the Lord. This is specially spoken of here by the Lord, Mata Prasadena, by my special grace. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. Only those who engage in devotional service with love and faith receive the necessary intelligence from the Supreme Personality of Godhead, so that gradually and progressively they can advance to the abode of the Personality of Godhead. Nishreyasha means the ultimate destination. So samsthana indicate that impersonally have no particular place to stay. The impersonally sacrifice their individuality so that the living spark can merge into the impersonal effulgence emanating from the transcendental body of the Lord. But the devotee has a specific abode. The planet rests in the sunshine, but the sunshine itself has no particular resting place. When one reaches a particular planet, he has a resting place. The spiritual sky, which is known as Kaivalya, is simply blissful light on all sides, and it is under the protection of the Supreme Personality of Godhead. As stated in the Bhagavad Gita 14:27, Brahmano hi pratishtaham, the impersonal Brahman effulgence rests on the body of the Supreme Personality of Godhead. In other words, the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead is Kaivalya or impersonal Brahma. In that impersonal effulgence, there are spiritual planets which are known as Vaikuntha, chief of which is Krishna Loka. Some devotees are elevated to the Vaikuntha planet and some are elevated to the planet Krishna Loka. According to the desire of the particular devotee is offered a particular abode which is known as Swasamsthana, his desired destination. By the grace of the Lord, the self-realized devotee engaged in devotional service understands his destination even while in the material body. He therefore performs his devotional activity steadily without doubting, and after quitting his material body, he at once reaches the destination for which he has prepared himself. After reaching that abode, he never comes back to his material world. The word lingada vinirgame, which are used here, means after being freed from the two kinds of material bodies, subtle and gross. The subtle body is made of mind, intelligence, false ego, and contaminated consciousness, and a gross body is made of five elements: earth, water, fire, air, and ether. When one is transferred to the spiritual world, he gives up both the subtle and gross body of this material world. He enters the spiritual sky in his pure spiritual body and is situated in one of the spiritual planet. Although they impersonally also reach the spiritual sky after giving up the subtle and gross material body, they are not placed in the spiritual planet as they desire. They are allowed to merge in the spiritual effulgence emanating from the transcendental body of the Lord. The word Samsthanam is also very significant. As a living entity prepared himself, so he attains his abode. The impersonal Brahman effulgence is offered to the impersonalists, but those who want to associate with the Supreme Personality of Godhead in his transcendental form as Narayan in the Vaikuntha or with Krishna in Krishna Loka go to those abode wherefrom they never return. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasme Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadadi Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Upadakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagarajata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitam Cha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachat Deshatarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के प्रातःकाल श्रीमद् भागवत की कथा में। सबसे पहले मैं इस ग्रेस सुरेश माधव प्रभु जी का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे एक संधि दी ताकि मैं थोड़ी कृष्ण कथा बोल सकूं। और सभी मैं नहीं जानता कौन कौन यहाँ पे है करके, लेकिन सबको मैं एक अबोध बालक, एक बहुत छोटे भक्त मान के, आपको वरिष्ठ मान के आपका नमन करता हूँ। और अगर कुछ त्रुटि हो गई, कुछ गलती हो गई तो माफ कीजिएगा। तो मैं थोड़ी सी जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है उसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो कथा चल रही है, भगवान स्वयं कपिल मुनि अपनी माता देवती जी के साथ संपर्क या संवाद कर रहे। तो ये श्लोक क्रमांक 28 और 29 है। हमने थोड़ी सी ये किया तो पहले हम अनुवाद में जाएंगे। तो अनुवाद में लगभग प्रभुपाद 4 वस्तु के बारे में उल्लेख करते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो मेरे भक्त रहते हैं उनको जो आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये मेरी अहेतु की कृपा से प्राप्त होता है। तो जो कुछ हमारे पास ज्ञान है या जो भी हम भक्ति में समझ रहे हैं, तो उसके लिए भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। हम चैतन्य चरितामृत में भी यहाँ तक देखते हैं कि भगवान के स्वयं अवतार है। भगवान महाविष्णु के अवतार और भगवान सदाशिव जी के अवतार है श्री अद्वैत आचार्य। वो भी जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उनको एक श्लोक का ऐसी अनुभूति होती है जिनका उनको अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम बाद में देखते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब शतप्रहर लीला कर रहे थे तो उनको बताते हैं कि जब आप बहुत समय से उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था तो मैं आया और आपको उसका अर्थ मैंने समझाया। तो हम देखते हैं भगवान स्वयं यहाँ पे उदाहरण स्थापित कर रहे कि उनको भी कुछ समझना था, तब उनको स्वयं भगवान की कृपा लगी क्योंकि यहाँ पे वो एक अलग लीला में थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ है आत्म साक्षात्कार का या कुछ भी हमें अनुभव प्राप्त होता है, ये गुरु और कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अकेले हम पढ़ने जाएंगे तो प्रभुपाद तात्पर्य में 2 श्रेणी के भक्तों के या लोगों के बारे में वर्णन करते। एक तो रहते रहे मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट। तो ये अपने तर्क से, अपने बुद्धि से वस्तु समझने का प्रयत्न करते हैं और हम देखेंगे उनकी क्या गति होती है और भक्त की क्या गति होती है करके। लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आशीर्वाद का मुद्दा। तो आशीर्वाद भगवान अपने भक्तों को देते, तो ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एक उदाहरण भी देते कि 2 प्रकार की माँ रहती है। अगर हम देखते हैं कभी-कभी एक प्रकार की माँ रहती है जैसे बिल्ली इत्यादि रहते हैं या शेर इत्यादि रहते हैं, और दूसरी प्रकार की माँओं में आती है बंदर। तो बंदरी जो रहती है तो वो क्या करती है, तो जाती है लेकिन बच्चा उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, अपनी माँ को बच्चा स्वयं पकड़ता है। लेकिन शेर के या बिल्ली के इसमें थोड़ा अलग रहता है। तो माँ जो बिल्ली की माँ रहती है, जो बिल्ली रहती है, अपने बच्चों को स्वयं उठाती है। तो उसी तरह भक्तों के लिए भगवान स्वयं उठा के उनको ये सारा ज्ञान देते हैं। उदाहरण देते हैं। तो मुझे भगवान के भक्त और एक सुंदर उदाहरण देते हैं, शायद थोड़ा-सा इंटरनेट का वजह से मुझे लगता है कट हो गया था। अगर ऐसा और एक बार होता है तो मैं वीडियो बाद में ऑफ करूँगा। तो ये भगवान का एक भक्त और एक उदाहरण देते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि भगवान की कृपा के कारण हमें बहुत गुह्य रहस्य या बहुत दिव्य तत्व के बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पे भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से, मेरे प्रसादेन कहते हैं उसे, तो मेरे प्रसाद या आशीर्वाद से ये सारा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये पहला है। दूसरा भगवान वही मत प्रसादेन कहते हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा ये प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो इसका ये दूसरा पहलू है, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का प्रसाद ये बहुत आवश्यक है। तो भगवान के आशीर्वाद से हम बड़े-बड़े सिद्धांत को समझ सकते हैं। आगे ये कहते हैं कि जो नीति श्रेय स्वयं
तो ये जो इम्पर्सनलिस्ट या जो ब्रह्मवादी या जो मायावादी जो रहते खास करके, इनके बारे में थोड़ा-सा उल्लेख किया गया है। इनको ये सुविधा, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, तो भक्त के ऊपर भगवान बहुत विशेष कृपा देते हैं, लेकिन अन्य के लिए इतना कृपा नहीं रहता। वैकुंठ में जब चतुर आ रहे थे और जय विजय ने उनको रोक लिया था, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जय विजय की रक्षा करने के लिए भाग के आ जाते। तो इस स्तर पे जो चतुर थे, ये भी ब्रह्मवाद का पालन करते थे, भगवान के साकार रूप से वो आकर्षित नहीं थे। लेकिन भगवान जब भाग-भाग के आ रहे, उनकी चरण कमल में से जो आने वाली तुलसी और जो चंदन, वो जब उन्होंने सूंघ लिया, तो परिवर्तित होके वो भक्त बन गए। लेकिन जब वो प्रवेश कर रहे थे, तो वो स्तर उनका नहीं था और यहाँ तक उन्होंने श्राप भी दे दिया था। तो यहाँ पे भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भाग के चले आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने पहले से वचन ले लिया था, मैं कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा। लेकिन जब भीष्म पितामह इतनी तेजी के साथ अर्जुन के ऊपर प्रहार करने लगे और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का आज अंत ही होने वाला है, तो भगवान ने अपने वचनों को बाजू में रखा, रथ से नीचे उतरे, वहां पे गिरा हुआ एक रथ का टूटा हुआ चक्का या पहिया पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए गए। तो भगवान की जो कृपा है, भगवान का जो प्रेम है, ये आगे पीछे नहीं दिखते। जैसे आज सुबह भी हम थोड़ी-सी एक चर्चा कर रहे थे, तो भगवान इतने कृपालु है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपने स्वयं के वचन को तोड़ देते। तो भगवान ने ये नहीं सोचा कि लोग आगे जाके क्या कहेंगे करके वसुदेव या कृष्ण ने अपने वचन को तोड़ दिया। नहीं, भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने वचन को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह के वचन की रक्षा की उन्होंने, और अर्जुन ने भी एक वचन लिया था कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में उनको कहा था कि आप पूरी दुनिया को बताओ कि नमम भक्त प्रणश्यति। तो सारी दुनिया को अर्जुन ने ऐलान किया था कि कृष्ण के भक्तों का कभी नाश नहीं होता। तो ये तीसरा है, कृपा के साथ-साथ जो ब्रह्मवादी, मायावादी वो नहीं समझते, लेकिन भगवान कृपा देते हैं अपने भक्तों के लिए। और आखिरी में तात्पर्य में प्रभुपाद और एक शब्द का उल्लेख करते हैं। यहाँ पे स्टीडी, ये जो सबसे परम ध्येय है, ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये परम ध्येय को कैवल्य करके भी उल्लेख किया है, भगवान के धाम को। तो प्रभुपाद तात्पर्य में उसे 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो वैकुंठ रहता है गोलोक वृंदावन में भी, लेकिन इसे कैवल्य करके भी उल्लेख किया जाता है। तो ये निश्चित रूप से क्या होता है, भगवान का धाम है, जहाँ ये हम सब चाहते हैं यहाँ जाने के लिए। और जो ये सारा तात्पर्य में थोड़ा बहुत उल्लेख करते प्रभुपाद, और निश्चित रूप से जो योगी रहते हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद वो स्थान पे जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा ये था। अभी थोड़ा-सा हम विश्लेषण करेंगे। तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं साक्षात्कार के बारे में, और विशेष करके आगे जाके 2 श्रेणी के बारे में उल्लेख करते हैं। अगर आपने ध्यान से तात्पर्य को सुना रहेगा, तो ये 2 प्रकार के जो ब्रह्मवाद या जो भगवान के निराकार रूप जानने वाले, इनकी एक गति रहती है, थोड़ा अलग गति रहती है, और जो भक्त की जो गति रहती है, थोड़ा अलग रहती है। तो ये भगवान से आने वाली जो रोशनी रहती है, जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं, तो ये ब्रह्मवादी या मायावादी उसमें लीन होना चाहते हैं। और भक्त भगवान के जो साकार स्वरूप में जो ग्रह है, जैसे वैकुंठ इसे कहते हैं, तो वैकुंठ में जाने के इच्छुक रहते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से कैसे वहां पे जाना है उसके बारे में भी थोड़ा उल्लेख करते हैं। तो ये तात्पर्य में अगर हम पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर तरीके से विधि बताई गई है कि क्या करना पड़ता है और क्या किस स्तर पे जाके हम वहां पे जाने के हम उपयुक्त बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभुपाद भक्त को ये कहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की कृपा से वो युक्त या वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो 2 प्रकार के जो शरीर रहते हैं, उसे त्याग करके आपको आत्मा के स्तर पे, आत्मा वहां पे जाती है। तो ये 2 प्रकार के शरीर का भी उल्लेख किया जाए, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो पंच महाभूत से बना हुआ है, जो पृथ्वी रहती है, जल रहता है, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत के शरीर को पीछे छोड़ते हुए साथ साथ और दूसरा जो शरीर, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इसे भी पीछे छोड़ते हुए अपने आध्यात्मिक स्तर, अपने आत्मा के स्तर पे जाके इन ग्रहों में, जिसे या तो वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में। और ये भी प्रभुपाद एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार। तो हर एक भक्त की अलग अलग इच्छाएं रहती है। तो या तो वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं या गोलोक वृंदावन में। तो ज्यादातर इस्कॉन में हम गोलोक वृंदावन की अर्चना करते हैं उनके, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हो सकते हैं जिनको केवल इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने, उनको गोलोक वृंदावन नहीं,
या तो वैकुंठ प्राप्ति की भी इच्छा हो सकती है। तो ये 2 अलग-अलग स्तर पे जाते हैं। तो इनका ये 2 जो गति है इनकी अलग-अलग हो जाती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे भी ये बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो भगवान यहाँ कपिल देव अपनी माँ को समझाते हुए सबसे उत्तम श्रेणी की जो श्रृंखला है, उत्तम श्रेणी का जो ज्ञान है वो दे रहे। तो अपने कैसे शरीर से ऊपर उठ के कैसे ज्ञान को प्राप्त करना, अपने 2 प्रकार के शरीर को त्याग करते हुए अपने धाम में ये तैयारी करना ये बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद इसके बीच में भी एक बहुत सुंदर दृष्टांत उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता के 14-27 में जो ब्रह्मन रहता है उसके बारे में भगवान उल्लेख करते हैं कि जो ब्रह्मन है भगवान के ऊपर आधारित रहते हैं। जैसे प्रभुपाद इसमें एक उदाहरण भी देते हैं या अन्य वक्त एक उदाहरण देते हैं कि सूर्य प्रकाश जो रहता है, ये सूर्य प्रकाश ऐसा फैला हुआ है, लेकिन सूर्य प्रकाश सूर्य के ऊपर जैसे आधारित रहता है, वैसे जो ब्रह्मन जो है ये ब्रह्मन सब जगह फैला हुआ है, लेकिन ये ब्रह्मन भगवान के ऊपर आधारित रहता है। इसलिए ये ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद विशेष करके भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर उपदेश भी देते हैं कि आप ये सारे अलग-अलग कार्यों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो भी प्रामाणिकता से भक्ति मार्ग में लगा रहेगा, वो निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त कर बैठेगा। सुबह ब्रह्मा जी के इसमें भी आप पीछे जाओगे 7वें यही तीसरे स्कंद में आप पीछे जब जाते हैं लगभग, तो ब्रह्मा जी का भी संवाद आता है। तो ब्रह्मा जी के संवाद में भी एक सुंदर उल्लेख आता है, ये 7वें अध्याय में आएगा। तो वहां पे ब्रह्मा जी के हम देखते हैं नाना प्रकार के निर्माण हुआ था। तो ब्रह्मा जी की छाती से बाद में धर्म का निर्माण हुआ, बाद में ब्रह्मा जी की जो पीठ थी उससे बाद में अधर्म का निर्माण हुआ था। तो ये अलग-अलग निर्माण कार्य में जब हो रहे थे, तो वो धर्म के बारे में प्रभुपाद एक बहुत सुंदर व्याख्या करते। तो धर्म जब प्रभुपाद उसका स्पष्टीकरण करते, तो सादी भाषा में धर्म का मतलब भगवान की प्रेममय सेवा करना। तो भगवान की उपदेशों का पालन करना, भगवान के संदेश को पालन करना अपने जीवन में, वो धर्म कहलाता है। और वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जो भी इस कार्य में लगा हुआ है, उनको जो कमी पड़ जाती है, जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, जो कमी है जो आपके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, अगर कुछ कमी है वो मैं दे देता हूँ। तो ये मैं स्पष्टीकरण इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिया में हम भक्तिमय क्रिया में लगे हुए हैं। अगर हम प्रामाणिकता से सेवा करेंगे तो हमारा उद्धार, या हम वैकुंठ में जाएँगे, गोलोक वृंदावन में जाएँगे, हमारा उद्धार होगा या क्या होगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य के बारे में मैं सुन रहे थे। उन्होंने बहुत सुंदर ये सिद्धांत बताया, तो उन्होंने स्वयं का उदाहरण के लिए लगभग वो जो प्रभुपाद की जो सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी वृंदावन धाम में नहीं आए थे। एक बार भी वो जगन्नाथपुरी, मायापुर में नहीं आए। तो लगभग 30 साल से सेवा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि वो मेरे मन में एक बार भी नहीं आया, क्योंकि मैं सेवा में इतना लीन हो गया था सेवा में, क्योंकि मैं जानता था कि प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार मैं सेवा करूँगा, तो ये बाकी वृंदावन धाम में जाना या भगवत धाम जाना ये भगवान देख लेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है कि जो गदाधर पंडित है या भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद है, उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया धाम में जाने का। लेकिन इसका मतलब अलग तरीके से भी नहीं लेना चाहिए कि धाम में अगर किसी को जाने की सुविधा मिलती है तो आप जा सकते हैं, हमें जाना चाहिए। लेकिन सिद्धांत हमें जानना चाहिए कि अगर कोई प्रामाणिकता से भी एक ही कार्य में सेवा करेगा तो निश्चित रूप से उसे क्या होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई थे, उनके बारे में जब पढ़ रहे थे, उनको लगभग वो 11-12 साल के थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया था कि आप बंगाल में एक मंदिर में सेवा करो करके। तो सेवा करते थे, लेकिन बहुत साल से सेवा करते-करते क्या हो रहा था, वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं आते, उनके प्रवचन भी करते, कथाएँ होती थी, भगवान की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा भी करते थे। और वो वृद्ध हुए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, और क्योंकि इतने बूढ़े हो गए थे, उनको अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए बहुत कष्ट हो रहा था और उनको गुरु की आदेश के ऊपर पूरा विश्वास था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जब बूढ़े हो गए, उनको वहाँ पे छोटा-सा जलाशय था, वहाँ पे छोटा-सा तालाब था, वहाँ से पानी लाते थे और भगवान की सेवा करते थे। उनको पानी लाना बहुत कष्ट हो रहा था, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बंदर आए और बंदर रोज़ वहाँ से पानी लेके उनको लाके दे रहे थे और बाद में उनके प्रवचन के लिए भी बैठते थे। तो ये बहुत थोड़ी-सी आश्चर्यजनक बात थी। इसलिए हम देखते हैं कि अगर कोई प्रामाणिकता से गुरु के आदेश अनुसार सेवा कर रहे,
तो मदद आ जाती है। तो भगवान की कृपा से मदद आ जाती है। स्वयं हम गदाधर पंडित के जीवन में भी हम देखते हैं, वो इतने बूढ़े हो गए थे, वृद्ध हो रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के वियोग में उनको खड़ा होना भी नहीं हो रहा था। और भगवान जो खड़े हुए थे, उनको माला पहनाने के लिए भी नहीं हो रहा था। वो भगवान क्या करते, झुक जाते, बैठ जाते। और गदाधर पंडित के बहुत सुंदर विग्रह जैसे भगवान बैठे हुए। तो हम देखते हैं ये सारे उदाहरण से कि भगवान की प्रामाणिकता या हम शुद्ध होने चाहिए, हमारा जो विश्वास है या हमारी जो सेवा है वो प्रामाणिक होनी चाहिए। वो प्रामाणिकता से जिस स्थान पे आप सेवा कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई छोटी भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान याद करेंगे। प्रभुपाद के पूरे आप तात्पर्य पढ़ते हैं तो मुझे एक व्यक्तिगत रूप से जो बहुत पसंदीदा एक लीला है। तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे शिष्य बनाए, इतने बड़े बड़े सन्यासी है, इतने बड़े बड़े महाविद्वान महापराक्रमी उनके शिष्य है। लेकिन पूरे जब श्रीमद् भागवतम में जब नाम प्रभुपाद किसी शिष्य का बताते हैं, वो एक प्रभुपाद जी की माता जी शिष्य थे जो तुलसी महारानी की सेवा करते थे। आप पूरा भागवतम पढ़ोगे, किसी सन्यासी का, किसी बड़े महान भागवत या भक्त का नाम नहीं आएगा। प्रभुपाद जी ने एक छोटी सी माता जी का नाम लिखा है क्योंकि वो तुलसी महारानी की सेवा करती थी। पाश्चात्य देश में तुलसी उगना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सारे भक्तों को सिखाया कैसे तुलसी आपको उगानी चाहिए करके। तो प्रभुपाद उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उनको वहां पे भागवतम में उनका शाश्वत रूप से नाम अभी लिखा हुआ है। तो आपके लिए आप अगर होमवर्क की तरह से भी ले सकते हैं, माता जी का आप नाम ढूंढ सकते हैं कि ये भागवतम में आता है, तुलसी देवी की जो सेवा करती है, उनका नाम प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो बहुत सुंदर तरीके से हमें जानना चाहिए ये कि प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे कपिल मुनि भी वही कहते हैं कि ये जो सारा जो आपको साक्षात्कार दे रहा, कौन दे रहा हो, मेरी कृपा से हो रहा है। तो जो भी हम थोड़ा बहुत सेवा कर पाते, भगवान का नाम जप कर पाते, या हम यहाँ पे कुछ भी हम कथा सुनते, ये किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की कृपा से हो रहा है। लेकिन हमारी तरफ से हमें क्या करना चाहिए? हमारा थोड़ा-सा समर्पण दिखाना चाहिए, हमें थोड़ी इच्छा करनी चाहिए। मुझे बरसाना की एक ऐसे ही बाबा जी महाराज की याद आ रही। तो हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इनके बारे में थोड़ा उल्लेख करते। तो ये बाबा जी क्या करते थे, उन्होंने गाँव में समाचार फैल गया था, वहाँ पे एक तेंदुआ, एक लेपर्ड, एक बाघ घूम रहा है करके। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से, उनका अगर मैं गलत नहीं, उनका नाम है रमेश बाबा। तो ये छोटी सी एक काठी, एक लकड़ी लेके सो जाते थे। तो गाँव वालों ने पूछा, अगर बाघ आएगा, ये छोटी सी काठी तुम्हारी क्या करेगी करके। छोटी सी काठी से तो आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो मुस्कुरा के कहने लगे कि ये तो मैं केवल राधा रानी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो बड़ी लाठी रख के भी क्या फायदा, अगर बाघ खाना है तो कैसे भी खा जाएगा, लेकिन मैं प्रयत्न दिखा रहा हूँ। वही ये दामोदर लीला का भी सार है कि हमारे प्रयत्न होने चाहिए, आगे का भगवान देख लेते। तो आपका मैं बहुत हम भी यहाँ थिविम में मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ कि हम यहाँ पे 8-10 भक्त मिलते। और मैंने भी देखा है कल के दिन लगभग 20-22 भक्त आते एकत्र मिलके, आप कथा कीर्तन सुनते हो। बहुत सुंदर नरसिंह कवच का पाठ होता है, बाद में अंत में नरसिंह आरती भी होती है। भगवान की अलग अलग कथा या भागवतम से चल रहा है। तो लगभग आप तीसरे स्कंद में है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ लगभग आपको 4-5 साल हुए रहेंगे, क्योंकि तीसरे स्कंद में पहुंचने के लिए लगभग 3-3.5 साल तो लगते, शायद 4 साल भी जाते तो 1-2 श्लोक करने के लिए। तो लगभग 3-4 साल से आप बहुत सुंदर तरीके से ये नियमित रूप से कर रहे हैं। तो ये नियमित रूप से करना, ये भगवान को हम दिखा रहे हैं कि हम प्रामाणिक है और वो कृपा भगवान दे देते हैं। मैं हमारे थिवीम भक्तों का भी मैं एक छोटा सा मैं अनुभव बताता हूँ। तो पिछली साल की ये बात है, हम पुस्तक वितरण थोड़ा करना चाहते थे। तो हम इतना बड़ा यहाँ पे हमारा कांग्रेगेशन नहीं है, हम यहाँ पे लगभग 20-25 भक्त है यहाँ पे, बहुत बड़ा कांग्रेगेशन नहीं है। तो हम पूरे मैराथन में जब पुस्तक वितरण करते थे, तो लगभग हमारा पुस्तक वितरण ज्यादा से ज्यादा 60 जाता था, 100 भी नहीं पहुंचते थे। लेकिन पिछली साल परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और उनको प्रसन्न करने के लिए सारे भक्तों ने एक जिम्मेदारी ली कि उनको प्रसन्न करने के थोड़ा पुस्तक वितरण ज्यादा करेंगे करके। और जो आमतौर पे 1 तारीख से 31 तारीख तक मैराथन रहता, थोड़ा 15 दिन भी बढ़ाया था। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक थोड़ा 15 दिन ज्यादा दिए थे। तो हम थिवी में सोच रहे थे क्या करेंगे करके। तो लगभग हमारे 50 से करीब हो गए थे। हम सोच रहे 100 भी नहीं होंगे करके। तो 14 जनवरी के दिन हमने ऐसे एक हमारे एक स्पॉन्सर को पूछ लिया था कि क्या आप ये भगवत गीता आप दान करना चाहोगे करके। और उन्होंने पूछा आपके गांव में कितने लोग हैं करके। तो मैंने कहा 2600 लोग हैं करके। तो उन्होंने कहा ठीक है करके, मैं 2700 भगवत गीता दान कर देता हूँ करके।
तो एक ही दिन में जो हमारा लगभग 50 के करीब स्कोर था, तो दूसरे दिन आप 15 तारीख तक पहुंचते हुए एक दिन में 2700 पहुंच गए। तो ये क्या है, हम प्रामाणिकता दिखाते, भगवान कृपा भेज देते हैं, तो अपनी थोड़ा सा योगदान करेंगे तो पीछे से भगवान का ये आ जाता है। और ये जो परम या कैवल्य या जो भगवत धाम की यहाँ पे जो बात हो रही है भगवान, तो प्रोपात वहां पे जानबूझ के छोटा सा शब्द लिखते हैं कि इसके बारे में आप चिंता मत करो करके। दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो वहां पे वरदराज जी का बहुत सुंदर विग्रह, वरदराज जी स्वामी वरदराज जी कांचीपुरम में वहां पे बहुत सुंदर विग्रह है। तो उन्होंने अपने हाथ के ऊपर ऐसा वरद मुद्रा में हाथ के ऊपर लिखा हुआ है मां सुचे करके। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसका उल्लेख करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आखिरी में कहते मां सुचे। तो मां सुचे का मतलब डरो मत। तो ये तो विश्वास हमें होना चाहिए कि हम भक्ति में है करके, तो हम थोड़ी गुरु की सेवा करनी चाहिए, थोड़ी भक्तों की सेवा करनी चाहिए। वो सेवा कुछ भी हो सकती है, या तो हम मंदिर में या सेंटर में जाके थोड़ी साफ सफाई कर सकते हैं, या तुलसी पत्ते लाके भगवान को अर्पण कर सकते हैं, या कोई माता है तो भोग बना सकते हैं भगवान के लिए बहुत सुंदर, कोई पुष्प हार बना सकते हैं, कोई है तो प्रभु जी से तो अरेंजमेंट में अगर वहां पे कुर्सी लगानी है, जो जमकाने हैं, नीचे छतरंगी डालनी है, तो ये थोड़ी-थोड़ी सेवा करेंगे, तो ये प्रामाणिक नियमित रूप से करेंगे तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएँगे। तो भक्ति का मतलब केवल ऐसा कहाँ पे भी नहीं लिखा है, जो प्रवचन करते हैं बहुत बड़ा प्रचारक उनका ही उद्धार होगा, वही भगवत धाम जाएँगे, ऐसा कहाँ पे नहीं लिखा है। छोटी भी प्रामाणिकता से गुरु की जो सेवा करते हैं, वो भी क्या करेंगे, उनका भी उद्धार हो सकता है। मैं ऐसे भक्तों को भी जानता हूँ, उन्होंने आज तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, लेकिन मैं उनके संपर्क में हूँ। लेकिन क्या करते हैं, बहुत सुंदर वो लेख लिखते, और उनके मैं और एक ऐसे भक्तों को जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन भक्तों के लिए वो क्या करते थे, प्रसाद की सुविधा करते। वो कभी अपना नाम नहीं बताते थे, कहाँ से कुछ नहीं बताते, लेकिन प्रसाद की सुविधा दे देते। तो ऐसे चुपके से पीछे से सेवाएँ कर रहे हैं, तो भगवान उनसे बहुत निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएँगे। तो ये यहाँ आज की श्लोक का सारांश यही है कि सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं भगवान मत या मेरे प्रसाद से प्राप्त होता है। दूसरा, प्रभुपाद के तात्पर्य में हमें जानना चाहिए, 2 प्रकार के जो शरीर का उल्लेख करते हैं उसे त्याग करके जाना है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान की सेवा में लगा है, ये निश्चित रूप से ये स्तर से ऊपर उठ चुका है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य भगवान स्वामी है, और वो जानता है हमारे जीवे रे सूर्य कृष्ण रे नित्य दास। तो ये तत्व को जान के ही हम सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से ये सारे जो ज्ञान मार्ग जो है, कर्म मार्ग है, सब कुछ छोड़ के भक्ति मार्ग दिया है। तो सीधे रूप से हम भगवान की सेवा में स्थित हो जाते, और तत्वों में भी स्थित हो जाते हैं कि हम भगवान के दास है करके। तो ये सरलता से, प्रामाणिकता से अपने जहाँ पे भी सेंटर, अगर आप परिवार में कार्य कर रहे हो, परिवार का योगदान करते हो, उनकी सेवा करते हुए, तो विश्वास रखना चाहिए। और मैं आखिरी में एक चीज कह के मैं रुकूंगा, ये हमारे प्रभुपाद जी के बहुत वरिष्ठ शिष्य ने ये कहा था मुझे। तो उन्होंने क्या कहा जब मिले थे, उन्होंने कहा कि आप मन में कभी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं प्रभुपाद जी के लिए और कुछ थोड़ा सेवा कर सकता हूँ करके। तो इसका मतलब बहुत गहरा है कि मृत्यु के समय कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, अरे अरे मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि जितना हो सकता है हमारे से, जितनी हमारी क्षमता है, हमें अभी से सेवा करना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता है। अगर हम छोटी सी गिलेरी गिलेरी की तरह सेवा करो, हनुमान है तो हनुमान जी की तरह बड़े बड़े पहाड़ लाके राम के सेतु में आप सेवा कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर तत्व है कि ये कभी पछतावा नहीं होना चाहिए हमारे मन में कि मैं थोड़ा और सेवा कर सकता था, मैं कर नहीं पाया करके। इसलिए हम भी थोड़ा प्रयत्न करते हैं कि हमारा भी दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पे हम कृष्ण कथा नहीं करते, नहीं सुनते। तो थोड़ा भी समय मिलता है, थोड़ी छुट्टी मिलती है, हम कहाँ जाके मिलते एकत्र आके, तो मैं आखिरी के समय मन में ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं कर सकता था प्रभुपाद के लिए, मैं ये भक्तों के लिए सेवा कर सकता था, मैं कर नहीं पाया करके। ये पछतावा मन में कभी नहीं होना चाहिए। जितना मेरा हो सके मैं करूँगा। और प्रभुपाद जी को अगर आपने देखा है, उनके अंतिम दिनों में फाइनल लेसन आप देखोगे, तो भौतिक स्तर पे आप देखोगे तो उनकी केवल हड्डियाँ थी। आप देखो उनके मांस भी नहीं थे, वो बोल नहीं पा रहे ठीक रहे, लेकिन फिर भी वो भागवतम का अनुवाद कर रहे, भागवतम के ऊपर टिका दे रहे। उन्होंने अपने उदाहरण से भी सिखाया कि अंतिम समय में भी वो सेवा मार्ग में नहीं छोड़े उन्होंने। तो हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अंतिम समय पे हम हमसे भी सेवा भगवान की हो करके, और आपसे भी मैं निवेदन करता कि अंतिम क्षण तक हमसे सेवा हो करके। और भक्तों के संग में अगर
गलती से हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे, जैसे वरदराज जी स्वामी कहते हैं कि मैं आपकी चेतना में आके आपको मेरा स्मरण दिलाऊंगा। तो ये बहुत सारे भगवान ने हमें आश्वासन दिए, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य इंद्रदुम्न स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर उल्लेख करते, ये कह के मैं रुक जाता हूँ, मुझे लगता है समय हुआ रहेगा। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। हम श्रीखंड में मायापुर में जब गए थे, उन्होंने बहुत सुंदर बात की कि आप इतने बड़े भक्त हो, क्यों डरते हो करके। तो उन्होंने कहा आप केवल, आपको डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या होगा मेरे जीवन का, थोड़ा पीछे देखो कौन है करके। तो अगर कोई दीक्षित भक्त है तो पीछे देखना चाहिए कि गुरु महाराज खड़े हैं करके। तो सबसे पहले दीक्षित भक्त देखेंगे गुरु महाराज खड़े हैं, तो उसके पीछे देखो कौन है करके, पीछे कौन है, शिला प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद जी के पीछे देखो कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। उनके पीछे देखो शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके पीछे देखो शिला भक्ति विनोद ठाकुर है। उनके पीछे देखो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके पीछे देखो शरण गोस्वामी खड़े, चैतन्य महाप्रभु स्वयं खड़े। उनके पीछे पीछे व्यास देव जाएंगे, वहां पे नारद मुनि स्वयं, वहां पे ब्रह्मा खड़े और स्वयं भगवान खड़े। तो इतना पीछे गुरु शिष्य परंपरा में आपके पीछे खड़े, तो डर किस बात का। तो हमें केवल प्रामाणिक होना चाहिए, हमें डर इतना ही लगना चाहिए कि मैं प्रामाणिकता न छोड़ दूं। तो अगर हम प्रामाणिक रहेंगे तो भगवान कृपा देंगे, निश्चित रूप से कृपा देंगे। तो ये कहते हुए मैं रुकूंगा कि हमारी प्रामाणिकता रहेंगी तो भगवान कृपा निश्चित रूप से देंगे। तो आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि ये मुझे संधि दिए करके। तो सारे वैष्णव को हम प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।